was recording started? Yes. Okay. Now the function is clearly mentioned, e raised to minus 2t cos hyperbolic of t into sine t. Now you can just observe that here it is the sine of t cos of hyperbolic. So first, always remember that I'm just writing f of t is equal to e raised to minus 2t into cos of hyperbolic of t into sine of t. हमेशा याद रखने का हाइपरबोलिक फंक्शन है तो उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो. एज इन अ लेक्चर, इन अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ M3 I told e raised to or cos of hyperbolic of at which is equal to e raised to at plus e raised to minus at divided by 2. So similarly here we have to use, so f of t will becomes, f of t will be is equal to e raised to minus 2t into cos hyperbolic t will becomes e raised to t plus e raised to minus t, a यहाँ पे है ही नहीं, divided by 2 into sine of hyperbolic of sine of t as it is. Just a second. Actually just one message from college, so just a 1 minute just. Fine. So now you can see that is 1 by 2. I'm just taking outside, so f of t is equal to 1 by 2. F of t is equal to 1 by 2. Now we have to simplify this part. So e raised to minus 2t, e raised to minus 2t into e raised to t will becomes what? E raised to minus 2, e raised to minus t. Because e raised to minus 2t plus t, कितना बचेगा? E raised to minus t. Similarly here, plus e raised to minus 3t into sine of t. So this is my f of t. Now again simplifying this part, f of t is equal to, I'm taking a Laplace transform of this function. So 1 by 2 is treated as a constant Laplace of, just multiplying this part, e raised to minus t into sine of t plus e raised to minus 3t into sine of t. So Laplace f of t, which is equal to 1 by 2 Laplace of e raised to minus t as it is. Sin t का Laplace क्या होता है? Sin at of Laplace is what? Laplace of sin at a upon s square plus a square. So a upon a square plus a square, with this part will becomes what? A is 1 here, so 1 upon s square plus 1 square plus e raised to minus 3t as it is. Similarly here 1 upon s square plus 1 square. So Laplace of f of t is equal to 1 by 2, as I mentioned clearly, what I mentioned, that is e raised to minus t, e raised to minus t into 1 upon s square plus 1 square
दिस पार्ट विल बिकम्स व्हाट, s के साथ आपको क्या करना है, अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या होएगा प्लस, सो 1 अपॉन s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे आके आपका रिजल्ट स्टॉप हो जाता है। I hope things are clear to everyone. Why I converted that is a cos hyperbolic t into sine into exponential, because sine and cos hyperbolic both the functions are present. तो कभी भी जब दोनों फंक्शन साथ में प्रेजेंट हैं, सर्कुलर और हाइपरबोलिक, तो फर्स्ट इट इज योर ड्यूटी और इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू कन्वर्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। दोनों को एक साथ रख के आप सॉल्यूशन कभी नहीं ला पाओगे। दो ट्रिक सर्कुलर फंक्शंस था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अलग करेंगे, जब भी हाइपरबोलिक है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। सो होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन जस्ट टेल मी, इफ नो देन आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट। Sir, can you explain the second last step where e raised to minus t and e raised to minus 3t? This one. Yes, sir. Second last and the last step. This and this. Yes, sir. Laplace of sine at is what? A upon a square plus a square. So Laplace of sine t is what? 1 upon a square plus 1 square. Similarly here we applied, and later on that is what is the first shifting theorem. First shifting theorem clearly state that whenever e raised to minus at or e raised to at is multiplied with any functions, you have to apply s plus a or s minus a. अभी यहाँ पे क्या है, -1 है, e raised to minus t means minus sign is there, so you have to perform s plus 1. अगर suppose ये minus नहीं होता, ये plus होता, तो you have to perform s minus 1 the whole square. So according to that we formalize this equation. And because there is minus 3t, तो s plus 3. Yes, s plus 3 the whole square. जहाँ पे भी s रहेगा उधर +3 या -3 करना होगा। कैसे कब, अगर ये प्लस रहता, e raised to 3t रहता, तो you have to perform s minus 3. Yes, sir. Thank you. That's it. Now proceeding with the next lecture. Next question. So one more question I'm just taking. E raised to 2t into 1 plus t square. So again we have to perform our solution of this question. F of t is equal to e raised to 2t 1 plus 2t square plus t raised to 4. Now we have to multiply. F of t is equal to e raised to 2t plus e raised to 2t into 2t square plus e raised to 2t into t raised to 4. So Laplace of f of t, which is equal to, और one more step पहले ही मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे Laplace I applied. Now see, Laplace of t raised to n, as I mentioned in a first lecture,
n factorial upon s raised to n plus 1. S n factorial upon s raised to n plus 1. So similarly here e raised to 2t है, मतलब यहाँ पे 1 है, और लाप्लास ऑफ e raised to प्लस माइनस at का भी मैंने आपको बताया था. The Laplace transform of that function is 1 upon s minus plus a. s minus plus a. अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. So here it is e raised to 2t is there, so 1 upon s minus 2 plus Laplace of e raised to 2t as it is, and Laplace of 2, so 2 treated as a constant part, so I'm taking just outside, and Laplace of t square is what? T square is, according to this formula, n factorial means 2 factorial upon s raised to n plus 1 means 3, plus Laplace of e raised to 2t as it is, and it is again t raised to n, so t raised to 4, so 4 factorial upon s raised to 5. So hope things are clear to everyone. सर क्वेश्चन में 1 प्लस टी द होल स्क्वायर है. Yes, क्वेश्चन में 1 प्लस टी द होल स्क्वायर है. yeah, it is a whole square actually. 1 plus t square raised to power 2. So एक क्वेश्चन ऐसा भी है 1 प्लस टी और उसका स्क्वायर, और एक 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर 2. तो a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला वी अप्लाइड हियर, 1a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बाद में मल्टीप्लाई कर दिया गया, स्क्वायर में लिखना भूल गया था. सो मूविंग अहेड विद दिस प्रॉब्लम, दिस पार्ट, होप ये क्लियर हुआ होगा आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह कैलकुलेट किया गया है. नाउ वी हैव टू फाइंड लाप्लास ऑफ f of t, which is equal to 1 upon s minus 2 plus 2 factorial means 2, 2 to the 4 upon, देखो e raised to 2t है अभी, तो यहाँ पे e raised to 2 है, मतलब प्लस है, तो s के साथ क्या होएगा, माइनस हो जाएगा, s minus 2 raised to power 3 times. Similarly 4 factorial, मतलब you can, if you want you can multiply 4, 3, 2, 1, so 24 अपॉन, यहाँ पे s रेस टू 5, यहाँ पे 2 है, तो s माइनस 2 रेस टू पावर 5, और यहाँ पे हमारा सम एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. सो दिस इज एक्चुअली नोन एज अ बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और अकॉर्डिंग टू दी सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वी डायरेक्टली derive such a kind of a Laplace transform of respective functions. अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दैट इज जो मैंने मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू एन आपको बताया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. सो होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको. अलजेब्रिक फंक्शंस को भी लाप्लास अच्छी तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको आएगा तो डेफिनेटली यू कैन लर्न इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बिकॉज डिपेंड है. अगर आप देखो किस लिए क्यों डिपेंड है, अब मैं अगर पूछूंगा ये s माइनस 2 कहाँ से आया, अगर आपको पूछूं मैं s माइनस 2 क्यों आया, ये माइनस 2 s के साथ क्यों आया, सो यू विल टेल दैट इज दिस e रेज टू 2t, ये e रेज टू 2t था, इसकी वजह से s माइनस 2 मैंने लिखा है यहाँ पे. तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको नहीं पता रहेगा तो इनवर्स में आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, ये क्वेश्चंस आपका रहेगा और आप घूम के जाओगे, आंसर ही लिखोगे. क्यों? क्योंकि s माइनस 2 s माइनस 2 s माइनस 2, तो सबसे पहले ये माइनस टू क्यों आया, तो e रेज टू 2t है रहेगा, इसके वजह से e रेज टू t सॉर्टेड हो जाएगा, तो 1 अपॉन s माइनस s आ जाएगा. 1 बाय s किसका लाप्लास है, 1 का. तो रिवर्स आपको उसी वक्त आएगा जब आप को लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होगा. अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फंक्शंस नहीं पता हैं, तो आप उसका इनवर्स कभी नहीं फाइंड आउट कर पाओगे. So that's why the basic things and the derived Laplace transform is important. जो आपके sin at हैं, cos at हैं, sin hyperbolic at है, t raised to n है, e raised to at plus minus at है,
ये सभी के स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठना चाहिए कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एग्जैक्टली हम किधर और क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई रहेगा एक्सपोनेंशियल से तब आपको अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट आई एम मूविंग एज दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू एन। अब मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू एन अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखा है, बट फिर से मैं यहाँ पे बताऊँ आपको। उसमें रूल क्या है, लाप्लास ऑफ टी रेज टू एन अगर मल्टीप्लाई होता है किसी भी फंक्शन को, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू एन डी रेज टू एन बाय डी एस रेज टू एन और एफ ऑफ एस। So this is known as a Laplace transform of multiplication by t और t raised to n जिसको हम लोग कहते हैं। थ्योरम वगैरह डिराइव के लिए आपको नहीं आएगा। ऊपर के जो क्वेश्चन आपने देखे हैं यहाँ पे, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो उसी बेसिस पे। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो लेंदी चले जाएगा क्योंकि t रेज टू 4 मतलब यू हैव टू परफॉर्म 4 टाइम डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल का इजीली। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, चॉइस है, आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू एन यूज कर रहे हो। एग्जाम में ऐसा कहीं मेंशन नहीं रहेगा कि बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और बाय यू कैन से दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू एन। आपको बस सॉल्व करना है, जो मेथड आपको क्लिक हो जाए वो मेथड से आपको सॉल्व करना है। So this is multiplication by t raised to n. I'm just taking the next problem, fourth one. So the first problem I'm taking is a t into e raised to minus t into cos of hyperbolic of t. Sorry, cos of hyperbolic of 2t. So this is my f of t. f of t is equal to, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूरा फंक्शन मेरा f of t है, ऐसा है, पूरे फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे, एंड वी हैव टू solve this problem. So e raised to minus t into cos of hyperbolic of 2t। कितना इजी न्यूमेरिकल है देखो। सबसे पहला तो एकदम इजी क्वेश्चन अपने माइंड में फिक्स करके रखो एक चीज, कि हाइपरबोलिक फंक्शन अगर आता है ना तो उसको सीधा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा भी करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा, बट क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है फिर दूसरा हाइपरबोलिक है, और हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला एक आदत बना के रखो कि यू विल कन्वर्ट दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल e रेज टू माइनस टी इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 2t इज इक्वल टू, सॉल्यूशन मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इज इक्वल टू e रेज टू माइनस टी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2t। अगर देखूँ मैं एक्सपोनेंशियल बेसिस पे तो क्या हो जाएगा, e रेज टू 2t प्लस e रेज टू माइनस 2t अपॉन 2, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये पार्ट क्या होगा मेरा, e रेज टू माइनस टी इंटू कॉस ऑफ hyperbolic of 2t is equal to 1 by 2 as it is, e raised to minus t into e raised to 2t। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, बचेगा e raised to t खाली, और यहाँ पे आएगा e raised to minus 3t, और यहाँ पे ये वर्क अपना हो गया, पहला पार्ट हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसका हम लोग लाप्लास निकाल देते हैं। सो लाप्लास ऑफ e raised to minus t into cos of hyperbolic of 2t which is equal to 1 by 2 e raised to t Laplace as it is
प्लस ई रेस टू माइनस 3t। सर प्लस 3t आएगा ना उधर? माइनस 3t आएगा। माइनस माइनस प्लस होता तो फिर 3t हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन थोड़ी माइनस माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हो आप। ई रेस टू ए एक्स इंटू ई रेस टू 2ax है, तो इसको क्या करोगे, ई रेस टू ए एक्स प्लस 2ax करोगे ना। तो माइनस इधर अगर माइनस है और इधर माइनस है तो ये भी माइनस ही रहने वाला है, ये भी आपका माइनस ही रहने वाला है। तो साइन क्यों प्लस होगा, साइन केप्ट एज इट इज, मल्टीप्लाई नहीं होता है। इंडाइसेस रूल जो थे आपको उस बेसिस पे हो जाएगा ना। तो we have to perform Laplace inverse, sorry, Laplace transform, तो this part is equal to 1/2 Laplace transform of इसका क्या हो जाएगा, e raised to t मतलब 1/s minus 1 हो जाएगा, और इसका अपने को क्या मिलेगा 1/s plus 3 हो जाएगा। और ये हमको मिलता है e raised to प्लस माइनस ए टी का लाप्लास मैंने ऊपर ही लिखा है 1/s minus plus a, तो अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, t मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाप्लास ऑफ, दिस इज व्हाट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किस काम को मिला है, e रेस टू माइनस टी इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 2t का लाप्लास हमको मिल गया। अब हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे पूरे फंक्शन का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ 2t विच इज इक्वल टू, तो जैसे ही t मल्टीप्लाई होता है तुरंत क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में ये t रेस टू n f ऑफ t, तो f ऑफ t तो आपके लिए पूरा था, इसका आपने फाइंड आउट कर लिया लाप्लास। अब t रेस टू n, तो t रेस टू n मतलब यहाँ पे t का पावर कितना है 1, तो यहाँ पे लिखूंगा -1 रेस टू पावर 1 इंटू डी रेस टू 1 अपॉन टी एस रेस टू 1, या नहीं भी 1 लिखोगे तो भी चलेगा। और इसका लाप्लास जो आपने निकाला है, तो ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2t का लाप्लास क्या निकाला है 1/2 इंटू 1/s माइनस 1 प्लस 1/s प्लस 3, और ये अपने लाप्लास है वही चीज़ लिखा है -1 रेस टू n डी रेस टू n बाई डी एस रेस टू n एफ ऑफ एस, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है एफ ऑफ एस। तो लाप्लास ऑफ ये फंक्शंस का आपने जो निकाला है वो क्या हो गया आपका, ये फंक्शंस का लाप्लास आपने फाइंड आउट किया है, और वो फाइंड आउट अपने को क्या मिला है, ये पार्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस वी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे -1 रेस टू 1 मतलब माइनस ही हो जाता है वो पार्ट, सो -1/2 डी बाई डी एस, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस करना है विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस वेरिएबल। नहीं आता है सीधा सिंपल u बाई वी रूल अप्लाई करने का, अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट, अगर पता है 1/x का डेरिवेटिव होता है 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बिकम्स -1/x² होता है, बट अगर नहीं आता है तो u बाई वी रूल अप्लाई करने का, नहीं जाने का डायरेक्टली। सो v इंटू एस माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, -1 एज इट इज़ लिखने का, डेरिवेटिव ऑफ s -1 लिखोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू s करना है तो s का डेरिवेटिव 1 और -1 का 0 डिवाइडेड बाय v² मतलब s -1 द होल स्क्वायर प्लस s प्लस 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 -1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ s इज 1 एंड 3 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे खत्म। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और आपका रिजल्ट आता है -1/2, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, -1 अपॉन s -1 द होल स्क्वायर, ये भी 0, -1 अपॉन
s plus 3 the whole square। और लास्ट में क्या करते हैं, माइनस साइन बाहर निकाल दोगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 1/s-1 the whole square plus 1/s plus 3 the whole square। और ये आपका सम एंड हो जाता है। नाउ जस्ट सी कि क्या वर्कआउट किया है हमने, और अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो यू कैन आस्क। Anyone any doubt? So please tell me. Sir, yellow mark from L Laplace of t e minus t cos s 2t from yellow mark. Okay. And the next line. Just see this formula first. Laplace. Yes, sir. आपका वॉइस बेटा वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो देखो जरा। Laplace of t raised to n f of t is equal to what, -1 raised to n d raised to n by ds raised to n into f of s। ये फॉर्मूला है। अब ये तो हमने लाप्लास फाइंड आउट कर लिया, इतना पार्ट अभी प्रीवियसली भी ऐसे क्वेश्चन किए। फिर हमने तुरंत हमारा माइंड किया कि इसको कौन मल्टीप्लाई है, टी मल्टीप्लाई। और हमारा रूल क्या है, जब भी टी मल्टीप्लाई होगा, वो 1 रहे, पावर 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, कितना भी रहे, पावर जब भी मल्टीप्लाई, सॉरी टी जब भी मल्टीप्लाई किसी भी फंक्शन को, तो -1 रेस टू एन होगा, डी रेस टू एन होगा, बाय डी एस रेस टू एन मतलब डेरिवेटिव इंटू एफ ऑफ एस। तो ये पार्ट हमने लिखा, टी मल्टीप्लाई था। अब टी का पावर इधर कितना है, 1 है, तो इसी फॉर्मूले में रखा है। तो -1 रेस टू क्या हो गया, 1 हो गया, डी रेस टू 1 बाय डी एस रेस टू एन। और इसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, क्या है, 1/2 1/s-1 प्लस 1/s प्लस 3। उसी को उठा के सिर्फ यहाँ पे रखा गया। ये वर्क इतना समझ में आया, ये स्टेप। Yes, sir. उसके बाद हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, जस्ट अ सेकंड, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u by v रूल? अकॉर्डिंग टू u by v, d by dx, and if u by v is there, then its derivative will becomes v into du by dx minus u into dv by dx अपॉन v स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, du by डेरिवेटिव ऑफ u by v। अभी इसका हमको डायरेक्टली नहीं पता है, क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसे लिख सकते हैं -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन s-1 द होल स्क्वायर, बट डायरेक्ट लिखने के ऊपर नहीं पता है, तो u by v से सीधा फाइंड आउट करो। तो ये न्यूमरेटर u हो जाता है, डिनोमिनेटर v हो गया। तो v एज इट इज रखे हैं, s-1, डेरिवेटिव लिया किसका, 1 का, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, s, तो बाय डिफॉल्ट वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, देन माइनस साइन, 1 एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ s-1 पूरा v का डेरिवेटिव लिया है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूँ dv by dx, तो यहाँ पे dv by ds मतलब s का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s 1 हो जाएगा अपॉन v स्क्वायर, तो s-1 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली
इसमें भी वही चीज़ अप्लाई किया है, v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ एंड डेरीवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, और पूरा सॉर्ट आउट करोगे तो ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएंगे, खाली आपको ये मिलेगा। और फिर माइनस साइन खाली मैंने बाहर लिख दिया है, माइनस साइन बाहर भेज दोगे तो माइनस माइनस प्लस, या ये माइनस साइन अंदर दे दोगे तो प्लस हो जाएंगे दोनों टर्म्स, और आपको ये रिजल्ट मिलता है। समझ में आया? यस सर, हो गया ओके, थैंक यू। Okay, now proceeding with the next question. अभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो इसमें आपके पास दो चॉइस होते हैं। आई थिंक 5th नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा आज का। t⁵ इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ t। कॉस हाइपरबोलिक t है, तो शायद आपको पहले भी मैंने बताया कुछ चीज़ आपको याद होना चाहिए, तो उस बेसिस पे हम लोग जाते हैं। फंक्शन आगे पीछे आप कर सकते हो, ऐसा कभी भी कहीं पे भी ऑब्जेक्शन नहीं है पूरे लाप्लास में कि आप आगे पीछे नहीं करो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका 5 बार डेरिवेटिव करना है, 5 टाइम्स डेरिवेटिव आपको करते जाना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस मैं आता हूँ, उसको समझाता हूँ आपको। तो cos रेज टू 5t, तो t रे लाप्लास ऑफ, या लाप्लास के बजाय मैं डायरेक्टली सेपरेशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन as we aware about that is cos of hyperbolic of t, which is equal to what, e raised to t plus e raised to minus t divided by 2। अब इसका लाप्लास निकाल देते हैं। सो लाप्लास ऑफ cos of hyperbolic of t इंटू 1/2 बाहर निकाल दिए। लाप्लास ऑफ e रेज टू टी का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/s माइनस 1 हो गया प्लस 1/s प्लस 1 हो गया। ये आपको मिल गया। एक स्टेप बढ़ा के लिखना है, लिख दो लाप्लास इंटू, बट डायरेक्टली मैंने किया, आप कर सकते हो, कोई भी मार्क्स आपके कैंसिल नहीं होते। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 5 टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है। तो टी रेज टू, तो लाप्लास ऑफ टी रेज टू 5 इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू 5, मतलब पहला टी से मल्टीप्लाई, मतलब -1 रेज टू क्या हो गया n, तो 5 हो गया, डी रेज टू 5 हो गया अपॉन डी एस रेज टू पावर 5 हो गया, इंटू 1/2 एज इट इज 1/s माइनस 1 प्लस 1/s प्लस 1। तो ये टर्म हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। हम इसको चाहिए तो सेपरेट लिखें, या चाहिए एक साथ लिखें, एक साथ लिखेंगे। -1/5 मतलब अल्टीमेटली मैं इधर लिखता हूँ डायरेक्टली, 1 -1 हो जाता है, तो -1/2 डी एस रेज टू पावर 5 अपॉन डी एस बोल रहा हूँ, डी रेज टू पावर 5 अपॉन डी एस रेज टू पावर 5 इंटू 1/s माइनस 1 प्लस 1/s प्लस 1। ये आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया ये वाला डेरिवेटिव u/v,
या तो इससे जाओ या फिर ये इसको यूज़ करता हूँ 1/x को। तो x माइंड में ऐसा कंसीडर करो कि s-1 और s+1 जो तुम्हारा है वो s है, x है। तो अगर just for understanding purpose, if I'm just taking d by dx with respect to अगर 1/x हम लोग करते हैं तो क्या होता है डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। u by v करोगे तो क्या होएगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 0 -1 डेरिवेटिव ऑफ x करोगे 1 होगा अपॉन x स्क्वायर। तो ये आ जाता। अगर इसका फिर से अपन डेरिवेटिव करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, देखो फर्दर अगर डिफरेंशिएट करें मैं d बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है हमको, -1/x स्क्वायर का, -1/x स्क्वायर का। तो ये आपको क्या मिलेगा देखो अच्छी तरह से, अगर नहीं पता तो u बाई वी करो, u बाय वी करेंगे तो थोड़ा ओरली वर्बली करने की आदत रखो, क्योंकि कैसा है कि या फिर अगर आपको करना है तो ऐसा ही करो, एक्स स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव ऑफ -1 क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस माइनस +1 हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा v स्क्वायर, तो x⁴ हो जाएगा। और फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, ये x और ये कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा 1/x³, सॉरी 2/x³ आपको मिलेगा। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव क्या मिला 2/x³। थर्ड फिर से करोगे आप डेरिवेटिव किसका, अब इसका डेरिवेटिव करता हूँ। अगर मैं समझाने के लिए कुछ लिख कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान देना 2/x, क्योंकि आगे अपने को बहुत काम आएगा। अगर ये डायरेक्ट थोड़ा सा आप कर लेते हो तो बहुत काम आएगा। नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव जब मैं करता हूँ तो फिर से वही रूल अप्लाई करता हूँ, x³ इंटू डेरीवेटिव ऑफ 2 करूँगा 0 आएगा, -2 डेरीवेटिव ऑफ x³ करूँगा तो क्या आएगा 3x² डिवाइडेड बाय x⁻³ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 6 हो जाएगा, राइट 6 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे ना तो 3 2 ज़ा 6 होगा, 9 नहीं होगा, गलती से 9 कर दोगे तो ये पार्ट 0 हो गया आपका, 2 3 ज़ा 6 हो गया, लेकिन माइनस होता है -6 होगा। मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ -2 इंटू 3 अपॉन ये स्क्वायर कैंसिल तो ये हो जाएगा x⁴ ये मिला हमें। आप अच्छी तरह से देखते आना, फर्स्ट में माइनस है, सेकंड में प्लस है, थर्ड में क्या है आपका फिर से माइनस है, मतलब फर्स्ट में 1 ही आ रहा है, सेकंड में 2 आया। तो अगर मैं इसको लिखूं ये 1 फैक्टोरियल हो गया, ये 2 फैक्टोरियल हो गया, तो ये क्या मेरा होएगा 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आप देखोगे तो इज इक्वल टू 3 2 1 होता है, 6 ही आता है ना, माइनस प्लस साइड में कर दो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि आगे जब आप फूरियर करोगे या दूसरे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो उस वक्त आपको ये चीज़ अगर दिमाग में बैठ गया तो आप डायरेक्टली कर सकते हो फटाफट। तो -2 3 सा क्या हो जाएगा 6 होगा, मतलब 6 मतलब क्या, इसको लिख सकता हूँ ऐसा 3 फैक्टोरियल अपॉन x⁴ माइनस ये 2 फैक्टोरियल माइनस ये 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो इसको कुछ ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, -1 ये माइनस नहीं है, ये चीज़ थोड़ा सा सेकेंड वाला आपका माइनस नहीं है, ओनली 2 फैक्टोरियल। तो व्हाट विल बी और पावर देखते जाओ, जब फर्स्ट किए तो स्क्वायर था, सेकंड किए तो क्यूब है, थर्ड डेरिवेटिव किए हो तो आपका क्या आ रहा है, मतलब तीसरी बार जब आपने डेरिवेटिव किया है तो 4 आ रहा है, तो क्या आ रहा है 2 3 4। तो अगर फोर्थ डेरिवेटिव करूंगा तो इसका मतलब आपको डायरेक्टली बोलने आना चाहिए d/dx इसका नेक्स्ट -3 फैक्टोरियल अपॉन x⁴ इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसका लिखने की आदत आना चाहिए, 4 फैक्टोरियल होगा और x⁵ होगा, एक पावर आगे होगा। तो फर्स्ट में 1 फैक्टोरियल बाय x² था, सेकंड में 2 फैक्टोरियल बाय x³, थर्ड में 3 फैक्टोरियल बाय x⁴ बट माइनस, तो फोर्थ मेरा क्या होएगा डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल बाय x⁵ एंड d/dx ऑफ
दिस पार्ट 4 फैक्टोरियल अपॉन x रेज टू 6 सॉरी x रेज टू 5, ये मेरा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन x रेज टू 6, 5 फैक्टोरियल अपॉन x रेज टू 6। माइनस नहीं आएगा? एक मिनट, आएगा क्योंकि अल्टरनेट जा रहे हैं तो माइनस ही आने वाला। तो इट विल बिकम्स माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन x रेज टू 6। अब ये समझने के लिए मैंने इसलिए बोला है, डेरिवेटिव तो हमने दिखा दिया, ये चीज़ करके बता दिया आपको। अगर आप इसको भी परफॉर्म करोगे उसी तरह तो आपको लेकिन ये किसका डेरिवेटिव है? डी रेज टू 5 बाय डी एक्स रेज टू 5 ऑफ 1 बाय एक्स का अगर 5 बार आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको क्या मिल रहा है? माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन एक्स रेज टू 6। इसका मतलब ये इम्प्लाइज करता है यहाँ पे ये चीज़ आपको, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, -1/2 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 5 इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ t विच इज इक्वल टू -1/2 इंटू, यहाँ पे डायरेक्टली लिखो अच्छी तरह से। मैंने क्या बोला था? s-1 रहे या s+1 रहे, दोनों का मतलब क्या होएगा आपके लिए? x x है। तो अगर 1/x का डेरिवेटिव 5 टाइम्स कर रहे हो तो क्या आ रहा है? -5 फैक्टोरियल बाय x रेज टू 6। तो इसका भी अगर डेरिवेटिव आप करोगे तो वही आएगा, खाली टर्म s-1 में बस s-1 रहेगा। तो ये आपको मिलेगा -5 फैक्टोरियल अपॉन s-1 रेज टू पावर 6 -5 फैक्टोरियल अपॉन s+1 रेज टू पावर 6। ये ऐसा आपको टर्म मिलेगा। अब माइनस माइनस बाहर जाके कैंसिल होगा, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है और फाइनली आपको रिजल्ट आएगा 60 इंटू, क्योंकि 5 फैक्टोरियल बाहर निकाल दोगे तो 120 रहेगा, 120 ऐसा आप काउंट कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 4 3 2 1, तो 5 4 ज़ा 20 30 60 हो गया, 60 2 ज़ा 120, तो 120 बाहर आएगा डिवाइड बाय 60, तो 1 अपॉन s-1 रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन s+1 रेज टू पावर 6। तो ये सॉल्यूशन है इस पार्ट का। या फिर आप जैसे मैंने इसको 1/x को यहाँ पे करके दिखाया है, इसको एक एक पार्ट को करके दिखाओ, एक एक पार्ट को। तो वो कैसा होगा? वो हमारे लिए ज़्यादा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी 5 बार हम लोग को करना है, इसको भी 5 बार करना पड़ेगा, तो सम बहुत लेंदी चले जाएगा। और अगर आप ये चीज़ यहीं पे अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x² हो जाता है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव खाली करने की आपकी देरी है, या 3 तक आप डेरिवेटिव कर लो, उसके बाद सिमिलरली करके आप 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हमने लिखा, कोई मार्क्स कैंसलेशन नहीं, कुछ नहीं। तो -1/x², फर्दर डेरिवेटिव करोगे 2 फैक्टोरियल बाय x³, 3 फैक्टोरियल, तो उसी तरह कंटिन्यूअसली भी आगे कभी भी आपको ऐसा सम मिलेगा कि 1/s-1 है, 1/s+1 है, तो आप एकदम इजीली उसको टैकल कर ले जाओगे। कि अगर 7 टाइम्स दिया है, t⁻7 दिया है, t⁻7 दिया है, तो भी आपके लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। तो भी इसका मतलब ये रहेगा 7 फैक्टोरियल है तो ऑड है, तो ऑड है मतलब -7 फैक्टोरियल अपॉन x⁻8 हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो 6 है, 6 रहेगा तो 7 रहेगा, 7 रहेगा तो 8 रहेगा। अब मैं आता हूँ इस सम पे थोड़ा सा आगे अलग। ये तो हमने एक सॉल्यूशन देख लिया यहाँ पे थोड़ा सा आता हूँ। t⁻5 इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ t। अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻5 बोलूँ तो क्या आएगा मेरे को? 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? s⁻6 आएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन s⁻6 मेरे को मिलेगा यहाँ पे पार्ट। अब इसके बाद मैं अगर बोलूँ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t, देखो मैं दोनों तरफ से सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में जैसा समझ में आएगा वैसा करना। मैं पहले ही बोला हूँ, आपको क्लिक होना इंपॉर्टेंट है। कॉस हाइपरबोलिक t आपने लिखा है e⁻t प्लस e⁻−t डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं इधर खाली ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इंटू t⁻5 कर दिया। तो ये क्या होएगा? देखो कॉस हाइपरबोलिक t मतलब e⁻t
प्लस ई रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा पार्ट, और इंटू टी रेस टू 5, मतलब ये पार्ट मैंने निकाल ही दिया है लाप्लास इसका, 5 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू 6, और यहाँ पे लाप्लास अप्लाई कर देता हूँ इसके लिए। अब मैंने आपको एक चीज़ सिखाया 1/2 और 5 फैक्टोरियल बाहर, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 एज इट इज़। एक्सपोनेंशियल जब भी होगा तो आप क्या करोगे, या इधर लिखना है तो लिख दो ई रेस टू टी लाप्लास ऑफ ई रेस टू टी इंटू 1/s⁻6 प्लस ई रेस टू माइनस टी इंटू 1/s⁻6, ये पार्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 मतलब कितना हो गया 60, और ये क्या होगा, मैंने आपको सिखाया है कि जब भी ई रेस टू प्लस माइनस है तो एस के साथ क्या करना है, उसका उल्टा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1/s-1 रेस टू पावर 6, क्योंकि प्लस 1 है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/s-1 रेस टू पावर, सॉरी s+1 रेस टू पावर 6। और ये देखो ये आंसर किधर गया, ये आंसर, दोनों में कुछ फ़र्क है, नहीं है फ़र्क, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो इट्स अप टू यू कि आप कौन से मेथड से कैसे जाते हो, कैसा आपको क्लिक कर होता है। तो दोनों पे फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपने ऑर्डर चेंज करके लिख दिया, सॉल्व कर दिया तो आपको रॉन्ग, नो वे, आंसर से इम्पोर्टेंट है ना। एग्ज़ाम में ऐसा आएगा कि बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेस टू एन और मल्टीप्लिकेशन बाय टी थ्योरम, नो वे, यू हैव टू टैकल इन एनी वे। होप दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। इधर डेरिवेटिव आपको करना था 5 बार, और इधर आपको सिर्फ और सिर्फ टी रेस टू 5 का लाप्लास फाइंड आउट किए, और उसके बाद सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल में ऑलरेडी कन्वर्ट करते आ ही रहे हैं, जस्ट रख के फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई किया। समझ में आया पार्ट दोनों? If anyone having any doubts, just let me know. I'm just sharing the attendance link, so you have to fill. सर एक मिनट, आज हमारा M3 का सेकंड लेक्चर ही है ना, इसके पहले एक ही लेक्चर हुआ है। एक मिनट, बोलो बोलो आप। सर मैं क्या पूछ रहा था, आप जितना सिखा रहे हो जो जो सम, वही सम प्रैक्टिस करें एग्जाम के लिए तो चलेगा? हाँ करो करो, और मेरा बोला ना और भी वीडियो अपलोड है ना मेरे चैनल पे, तो एक बार वो वीडियो भी गो थ्रू करते जाओ। तो मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ना? मैं आपको नहीं, बहुत है इनफ, मैं उतना क्लास में करवा ही देता हूँ कि आपको और एक्स्ट्रा करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, ऐसा ज़रूरत नहीं लगेगा। ओके सर, थैंक यू सर। एक मिनट, ये अटेंडेंस शीट फिल कर दो, मैंने शेयर किया आपको, आप लोगों को। Anyone having any doubts regarding this, so please let me know, huh? Fast, fatafat. Actually yesterday was an electricity failure at my building, so that's why I was not able to take the lectures. मोबाइल से लेता, बट मोबाइल से फिर क्या हो जाता है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मेरे को खाली एक PDF पे एक्सप्लेन करने या PPT बना के नहीं जमता है, सो दैट्स वाई मेरे पास नोट्स था, नोट्स बैठ के खाली वही एक्सप्लेन करता तो मज़ा नहीं आता। इसलिए जब तक बोर्ड पे सॉल्व मत करो तब तक मज़ा नहीं आता मैथ्स के, इसलिए मैंने लेक्चर वो किया था। कोई दिन हम लोग कवर कर लेंगे वो लेक्चर को सैटरडे। सर एक बार वो सेकंड पार्ट दिखाओ ना खाली। सेकंड पार्ट मतलब सेकंड जो मेथड से किया है? हाँ सेकंड मेथड। हाँ देखो यहाँ से टी रेस टू 5 का लाप्लास मैंने निकाल दिया पहले, n फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू n+1 वाला फॉर्मूला, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू 6 हो गया। कॉस हाइपरबोलिक टी, अब भी ऊपर भी यही कन्वर्जन किया, इसमें रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1/2, और 5 फैक्टोरियल कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया लाप्लास, पहला ई रेस टू टी इंटू 1/s⁻6 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ई रेस टू माइनस टी इंटू 1/s⁻6 मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद रूल अप्लाई कर दिया। फर्स्ट शिफ्टिंग रूल क्या कहता है कि जब भी एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई रहेगा किसी भी फंक्शन से, तो जहाँ पे भी s रहेगा वहाँ पे प्लस माइनस करना है। अभी इधर ई रेस टू क्या है 1t है, तो s-1 रेस टू 6 हो गया।
इधर e रेस टू क्या है -1t है, इसलिए इस s रेस टू s प्लस 1 रेस टू पावर 6 हो गया। एंड 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, 120 डिवाइडेड बाय 260 हो जाता है। तो इससे किया है। उस मेथड से भी करोगे तो भी फुल, अगर 5 या 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है तो भी फुल मार्क्स, इधर से भी करते हो तो भी फुल मार्क्स मिलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मार्क्स कट वगैरह होगा। Okay, anyone, any more doubt regarding this? So please let me know. Sir, done with the attendance. Can we leave? Just a minute. एक मिनट, हाँ, मैं मेरा अटेंडेंस एक बार मेरे साइड से ले लूँ, फिर उसके बाद just 1 minute wait. Till now only 24. Okay, rest people please just fill the form fast. Just 1 मिनट बाद आप लीव करना, मैं बोलता हूँ। Okay, you can leave now. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you.